السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ تلنگانہ کابینہ میں ایک اور وزیر کا اضافہ، پٹنم مہندر ریڈی نے لیا وزیر کا حلف۔ تلنگانہ کے بعض اضلاع میں آئندہ 5 دنوں تک بارش، یلو اور گرین الرٹ جاری۔ ہماچل پردیش میں کئی عمارتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئیں، منہدم مکانات بہہ گئے اور ریزلنگ فیڈریشن آف انڈیا کی رکنیت معطل۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کابینہ میں آج ایک وزیر کا اضافہ ہوا ہے۔ BRS کے رکن کونسل پٹنم مہندر ریڈی نے کابینہ وزیر کے طور پر حلف لیا۔ گورنر تمل سائی سوندر راجن نے مہندر ریڈی کو راج بھون میں وزیر کے طور پر حلف دلوایا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے ساتھ قانون ساز کونسل کے چیئرمین سکھیندر ریڈی، اسپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی اور کئی وزراء، MLAs اور قائدین نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تلنگانہ حکومت نے اساتذہ کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے DSC امتحان منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر 50,099 اساتذہ کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے DSC امتحان منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معذور بچوں کے اسکولز میں 1,523 اساتذہ کی جائیدادوں کو پر کیا جائے گا، جنہیں اسپیشل ٹیچرز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک محکمہ تعلیم میں اساتذہ اور غیر تدریسی کے 12,000 جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے گئے ہیں اور کئی کانٹریکٹ ملازمین کو باقاعدہ بنایا گیا ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ ٹیٹ امتحان 16 ستمبر کو منعقد ہوگا اور اس کے نتائج 27 ستمبر کو جاری کیے جائیں گے۔ اس کے فوری بعد DSC امتحان کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سابق میں منعقد ہونے والے DSC کی طرز پر ضلع کلکٹرز کی قیادت میں ہر ضلع میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے، جس کے اثر سے ریاست تلنگانہ میں آئندہ 5 دنوں تک بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش یا معمول کے مطابق بارش کا امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ میرچل، نلگنڈا، رنگا ریڈی، سوریا پیٹ، حیدرآباد، جنگاؤں، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، بھونگیر اضلاع میں بارش ہو سکتی ہے۔ ان اضلاع کے لیے یلو اور گرین الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ریاست آندھرا پردیش کے نیلورو، پاروتی پورم، کاکیناڈا، ایلورو، تروپتی اضلاع کے بعض مقامات پر بھی موسلا دھار بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے چندرائن-3 مشن کی کامیابی پر اسرو کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے لکھا کہ ٹیم اسرو کو مبارکباد، یہ ہندوستانیوں کی حیثیت سے ہمارے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ اسی طرح کئی اہم شخصیات نے بھی اسرو کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ہندوستان بھر میں چندرائن-3 کے چاند پر لینڈنگ کا مشاہدہ کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی یہ مشن کامیاب ہوا، ہندوستان بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگ جشن منانے لگے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پر لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء اور ریاستوں کے چیف منسٹرز نے بھی اسرو کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ تمام ہندوستانیوں کی کامیابی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے متنازعہ احکامات جاری کرنے والے نامپلی کی عوامی نمائندہ عدالت کے جج جے کمار کو معطل کر دیا ہے، جنہوں نے محبوب نگر پولیس کو مرکزی الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر CEC راجیو کمار کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ محبوب نگر کے راگھویندر راجو نے عوامی نمائندہ عدالت میں عرضی داخل کی تھی کہ وزیر سرینیواس گوڑ نے انتخابی حلف نامے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ اس عرضی پر سماعت کرنے والے جج جے کمار نے 31 جولائی کو CEC تلنگانہ اسٹیٹ چیف الیکٹورل آفیسر 2018 میں انتخابی افسر کے طور پر کام کرنے والے کئی IAS افسران اور وزیر سرینیواس گوڑ بشمول 10 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ الیکشن کمیشن نے انتظامی امور کے تحت ہائی کورٹ میں ایک شکایت دائر کی، جس میں کہا گیا ہے کہ انتخابی حلف نامے میں تبدیلی کرنے سے CEC کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے اس معاملے کی جانچ کرتے ہوئے عوامی نمائندوں کی عدالت کے جج کو معطل کر دیا، جنہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تھا۔
दम्मे के मरीजों को मछली में दवा देने वाले हैदराबाद के मशहूर बथनी ब्रदर्स के हरिनाथ गौड़ चल बसे। उनकी उम्र 84 साल थी। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक 4 समय की निश्चित शब उन्होंने आखिरी सांस ली। वाज़ेह रहे कि हर साल मिरक के मौके पर बथनी ब्रदर्स और उनका अरकान ख़ानदान की जानिब से हैदराबाद के नुमाइश ग्राउंड में मछली में दमे के मरीजों को दवा दी जाती है। ये दवा न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क भर में मशहूर है और मुल्क की कई रियासतों से लोग ये दवा खाने के लिए हर साल शहर आया करते हैं। बथनी ब्रदर्स के देहांत पर कई शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार किया है। शहर हैदराबाद के मियाँपुर में चहारशंबे की रात नामालूम अफराद की फायरिंग में एक शख्स हलाक हो गया। कुछ नामालूम अफराद ने देविंदर ज्ञान नामी शख्स को गोली मार दी और फरार हो गए। शदीद जख्मी देविंदर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान जख्मों से जान बर ना हो सका। माधापुर के डीसीपी संदीप एसओटी मियाँपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 6 गोलियां जब्त की। मुतवफ़ी की शिनाख्त मदीना गुड़ा सुदर्शनी होटल के जनरल मैनेजर के तौर पर की गई है। मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है। आफात समावी से बुरी तरह से मुतासिर हिंदुस्तान की रियासत हिमाचल प्रदेश में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। यहाँ 2 बच्चों बशमूल 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। कई मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है। ताज़ा मामला कोलू ज़िले के अनी सब डिवीज़न का है। यहाँ चंद ही लम्हों में 4 मंजिला इमारत ज़मींदोज़ हो गई। बहुत से लोगों ने इस वाक़े की वीडियो बनाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा मिट्टी के तोदे गिरने से 7 और इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गई हैं। उन तमाम इमारतों को गैर महफूज करार दिया गया था। उस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हिमाचल के लोग हर लम्हा खौफ में जी रहे हैं। फिलहाल किसी की मौत की इत्तला नहीं है। हालांकि वीडियो में एक शख्स कह रहा है कि उस घर में बहुत से लोग थे। फिलहाल इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या कोल्लू ज़िले के अनी बस स्टैंड के करीब पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक दरख्त हिलने लगता है। उसके बाद चंद ही सेकंड में 4 मंजिला इमारत गिरकर मलबा बन जाती है। हादसे के बाद हर तरफ धूल ही धूल नजर आती है। रियासत तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में एक बेवा खातून का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वहशियाना वारदात में कातिल ने गला काटकर खातून का कत्ल करने के बाद उसके दोनों पांव जिस्म से अलग कर दिए। ये वारदात मुलगू मंडल के बंदा मिल्लारम में पेश आई। मकतूल खातून की शिनाख्त वेंकटम्मा के तौर पर की गई है। उसकी उम्र 40 साल बताई गई है। मकतूल खातून प्लास्टिक का सामान फरोख्त करते हुए ज़िंदगी गुजारा करती थी। उसे 3 बच्चे बताए गए हैं। खातून का शौहर साबिक में फौत हो गया और वो अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। पुलिस के आला ओहदेदारों ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और कातिल की तलाश कर रही है। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से ताल्लुक़ रखने वाली न्यूज़ एंकर व रिपोर्टर सलमा सुल्ताना जो 5 साल कबल अचानक लापता हो गई थी, उसकी नाश पुलिस ने कोरबा दरी रोड पर जेसीबी से खुदाई के जरिए बरामद कर ली। बताया जाता है कि न्यूज़ एंकर 2018 में लापता हो गई थी। इस तरह पुलिस ने एंकर सलमा सुल्ताना के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। पुलिस ने खुदाई उसके बॉयफ्रेंड को दी गई इत्तला पर की, जिसे उसके कत्ल में गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमा सुल्ताना मुकामी सतह पर चलने वाले एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर और न्यूज़ एंकर थी। 5 साल कबल उसके बॉयफ्रेंड मधुर साहू ने अपने साथियों की मदद से उसका कत्ल कर दिया था और नई तामीर होने वाली सड़क के अंदर दफन कर दिया था। खुदाई में सेटेलाइट इमेजेस, स्क्रीनिंग मशीनें, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेंट्रोल रेडार मशीनों का इस्तेमाल किया गया ताकि हाईवे को किसी नुकसान से बचाया जा सके। सलमा की नाश बेडशीट के अंदर लपेटकर दफन की गई थी। बेडशीट में उसके चप्पल और बालों का नमूना भी मिला। नाश मुकम्मल तौर पर मस्क हो गई थी। उसके हड्डियों को डीएनए के टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। तकरीबन 5 साल कबल होने वाले इस जुर्म के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उसके बॉयफ्रेंड को भी इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और उसकी फ्राहम करदा इत्तला पर पुलिस और इंतजामिया ने खुदाई की थी। सलमा सुल्ताना 25 साल की थी जब वो 2018 में लापता हुई। एंकर कसमंडा में SECLC कॉलोनी में रहती थी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा था कि अगर 15 जुलाई तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंतखाबात नहीं होते हैं तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हिंदुस्तान की रेसलिंग फेडरेशन की रुकनियत को मुअत्तल कर देगा। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात पहले 11 जुलाई को होने वाले थे, लेकिन बाज़ अदालती मामलात की वजह से इंतखाबात नहीं हो सके थे।
सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में मंगल के रोज़ तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश हुई। इस दौरान बिजली के गरजने की ज़ोरदार आवाज़ें भी आईं। एक मौके पर बिजली हरम शरीफ में वाक़ दुनिया के सबसे बुलंद क्लॉक टावर पर गिर पड़ी, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मंगल को तूफ़ानी बारिश की पेशिनगोई की थी, जो 100% दुरुस्त साबित हुई और मक्का मुकर्रमा बशमूल अतराफ में गरज चमक और तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मस्जिद अल हराम के करीब क्लॉक टावर की तवील बुलंद इमारत पर बिजली गिरने का मंजर और हरम शरीफ के अंदर तेज हवाओं से प्लास्टिक के बैरिकेड्स और कुर्सियों के हवा में उठने वाले मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमेरिका में एक मरतबा फिर फायरिंग का वाक़या पेश आया। कैलिफोर्निया के काउंटी में वाक़ मशहूर बाइकर्स बार में फायरिंग की गई। अमेरिकी वक्त के मुताबिक चहारशंबे की शाम 7:30 बजे ये वाक़या पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद के हलाक और बास के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। इब्तदाई इत्तलात में पता चला है कि मुलजिम जिसने फायरिंग की है एक रिटायर्ड पुलिस ओहदेदार है। मालूम हुआ है कि बीवी की जानिब से दूरी इख्तियार करने पर वो बरहम था और उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और हमलावर को रोकने की कोशिश की गई और जवाबी फायरिंग में हमलावर भी मारा गया। फायरिंग में जुमला 11 अफराद जख्मी हुए, जबकि हमलावर बिशमूल 5 अफराद की मौत हो गई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना काबीना में एक और वजीर का इजाफा, पट्टनम महेंदर रेड्डी ने लिया वजीर का हलफ। तेलंगाना के बाज़ अजला में आइंदा 5 दिनों तक बारिश, येलो और ग्रीन अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं, मुनहदम मकानात बह गए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रुकनियत मुअत्तल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।